Chapter P block element. In this, our next topic is group 18 elements. So, as we have discussed earlier, group 15th, 16th, and 17th. So, here physical properties will be same. The periodicity in properties will be almost same. तो ग्रुप 18 एलिमेंट्स नाउ वी विल स्टडी. कौन से हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स? फर्स्ट वी शुड नो एंड देयर सिंबल्स. हीलियम He, नियोन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr, xenon Xe, and radon Rn, that is radioactive. So you should know what are the elements in 18th group. The next point in this is atomic properties. क्या क्या एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ हैं इन 18th ग्रुप एलिमेंट्स की? द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज Ns2Np6 except helium, because electronic configuration of helium is Ns2. तो बाय सीइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें ये पता लग रहा है, वी कैन आइडेंटिफाई ईजीली कि octet is completed for these elements, because in second shell maximum or any outermost shell, if 8 electrons are present, that is stable electronic configuration. The next is atomic radii increases down the group. This we know because as atomic number increases, नंबर ऑफ शेल्स ऑल्सो इंक्रीजेज. और अगर शेल इंक्रीज होती जाती हैं तो साइज है या एटॉमिक रेडियस है दैट विल बी इंक्रीज्ड. देन दीज एलिमेंट्स हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत हाई है, ये भी आप बता सकते हैं इजीली. वाई? दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन Ns2Np6 विच इज स्टेबल. सो वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी is required for these elements to remove an electron from this, and ionization enthalpy decreases down the group because जैसे size increase होता है तो ionization enthalpy है वो decrease हो जाएगी. The next is have large positive value of electron gain enthalpy. जो electron gain enthalpy की value है वो भी large positive है because they have no tendency to accept electrons, क्योंकि इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं है. अगेन सेम रीज़न, वाई? ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से दे हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. बोथ आर 1 mark important questions. Reason is same, due to stable electronic gas configuration. The next point is physical properties. These noble gases are monoatomic. This is also important point. Monoatomic क्यों होते हैं ये elements? Because their octet is completed. They do not have tendency to react or form compounds. Then these are colorless, odorless, tasteless, sparingly soluble in water. Then here important question. These have very low melting and boiling points. Melting और boiling points हैं इन एलिमेंट्स का बहुत लो है. Why? Because only inter-atomic interactions are present in these elements, which is very weak dispersion forces or London forces. They cannot form ionic bond, covalent bond because of inert configuration, stable electronic configuration. ओनली वीक डिस्पर्सन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं इन एटम्स के बीच में. तो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस हैं बहुत वीक हैं. दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होंगे. और जितना मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो उसके लिए कंडीशन होती है कि अट्रैक्शन है वो उतना ही ज़्यादा होना चाहिए. द नेक्स्ट इज़ लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसी भी नॉन सब्सटेंस में हीलियम का है. फर्स्ट रीज़न इज़ Ns2 कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें सबसे कम इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस हैं और जो एटॉमिक मास है दैट इज़ ऑल्सो वेरी लेस. तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है? हीलियम का. द नेक्स्ट इज़
Helium has one unusual property of diffusion also through most commonly used laboratory materials such as rubber, glass and plastics. That's why use of helium is more as compared to other elements. Then chemical properties of these elements. As we have discussed earlier, noble gases or 18 group elements are least reactive. These elements हैं वो बहुत कम least reactive हैं. तो क्यों है ऐसा? What is the reason behind this? This is due to stable electronic configuration. For helium it is 1s2, whereas for other elements it is ns2 and np6. So due to this ns2 np6 electronic configuration, it is stable electronic configuration. They have very less tendency to form bonds. The next point is very high ionization enthalpy and more positive electron gain enthalpy. इन सब रीजन्स की वजह से जो नोबल गैसेस हैं वो लीस्ट रिएक्टिव हैं, सबसे कम रिएक्ट करती हैं. अगर बहुत कम रिएक्ट करती हैं ये नोबल गैसेस, तो क्या इनके कंपाउंड नोन हैं? बहुत कम कंपाउंड्स हैं वो नोन हैं फॉर 18th ग्रुप एलिमेंट्स. उनमें से भी मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर नोन फॉर xenon. हाउ दीज वर डिस्कवर्ड? सो one scientist, Neil Bartlett, synthesized first compound of xenon. How he prepared? He prepared a red compound of oxygen with PTF6. Then he realized that the first ionization enthalpy of molecular oxygen, remember here it is not single O oxygen atom, it is molecular oxygen, that is O2. So what he realized that the first ionization enthalpy of molecular oxygen was almost identical with that of xenon. कि ionization enthalpy xenon की as we are saying कि बहुत ज़्यादा है क्योंकि stable electronic configuration है, तो ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में भी स्टेबल है. तो इसने रियलाइज़ किया कि जब ऑक्सीजन की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है O2 की, दैट इज़ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल विद xenon, और ऑक्सीजन का ऐसा कंपाउंड नोन है O2PTF6. देन ही मोटिवेटेड बाय दिस एंड ही मेड द अनदर कंपाउंड विद PTF6 and xenon, that is XePTF6, by mixing PTF6, platinum hexafluoride and xenon. So like that first compound was prepared, and by this motivation then other compounds were also prepared. So now we will discuss some xenon fluoride compounds. Three compounds are well known for xenon and fluoride. These are XeF2, XeF4 and XeF6. ये तीन कंपाउंड्स हैं. ये कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं? These were prepared with the reaction of xenon and fluorine. When fluorine is in less amount, approximate we can say, xenon is in excess, fluorine is in lesser amount, so XeF2 will be formed. When xenon and fluorine are present in 1:5, then XeF4 will be formed. And when xenon and fluorine will be present 1:20, ज़्यादा फ्लोरीन की अमाउंट प्रेजेंट होगी, 1:20 में होगा ये, then XeF6 will be formed. So कौन सा फ्लोराइड xenon का फॉर्म होगा? It depends upon the concentration of fluorine. और one more method is there. XeF6 can be prepared from XeF4 also. When XeF4 reacts with O2F2, तो क्या फॉर्म हो जाएगा? XeF6, and that's O2 will be removed by as side product. So like this xenon and fluorine compounds will be formed. The next point is properties of xenon fluorine compounds. इन xenon और fluorine compound की क्या properties हैं? These are colorless crystalline solids and powerful fluorinating agents. Then hydrolysis is important for these compounds. तो जब XeF2 का हाइड्रोलिसिस होता है तो इट विल फॉर्म HF, Xe एंड O2. क्या क्या कंपाउंड फॉर्म हो गए? xenon, देन HF और फिर O2. ये कंपाउंड्स फॉर्म हो गए.
by the hydrolysis of XeF2. Then xenon fluorides react with fluoride ion acceptor to form cationic species and fluoride ion donor to form fluoroanions. मीनिंग इज़ कि xenon फ्लोरीन के जो कंपाउंड्स हैं वो कैटायन एंड दोनों स्पीशीज़ बना सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर XeF2 किसी फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर से रिएक्ट करता है लाइक PF6 SbF6, तो ये क्या करेंगे, 1 फ्लोराइड आयन है वो एक्सेप्ट कर लेंगे इसमें से. तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इफ़ यू रिमूव F माइनस फ्रॉम ईयर XeF प्लस एंड PF6 माइनस, सो लाइक दिस कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड. 1 फ्लोराइड आयन यू ट्रांसफ़र फ्रॉम दिस टू दिस, क्या बन जाएगा, XeF3 प्लस SbF6 माइनस. बट इफ़ फ्लोराइड xenon compounds react, fluorine xenon compounds reacts with fluoride ion donor like metal fluorides, sodium, potassium, rubidium, cesium. तो these metals have tendency to liberate F minus. तो ये क्या करेंगे, फ्लोराइड आयन xenon फ्लोराइड के जो कंपाउंड है वो F माइनस को एक्सेप्ट कर लेंगे एंड कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड M प्लस XeF7 माइनस. एक फ्लोराइड आयन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा. तो इन केसेस में तो जिनोम पे पॉजिटिव चार्ज था, कैटायोनिक स्पीशीज़ फॉर्म हुई थी. लेकिन अगर फ्लोराइड आयन डोनर हैं तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ फॉर्म होगी, और एक्सेप्टर है तो जो चार्ज होगा जिनोन कॉम्प्लेक्स पे दैट विल बी पॉजिटिव. तो दीज ऑल रिएक्शंस आर इम्पोर्टेंट. ध्यान रखिएगा कि मेटल के साथ जो आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म करती हैं मेटल्स लाइक S ब्लॉक की जो मेटल्स हैं सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, उनके साथ दीज विल बी एक्टिंग एज फ्लोराइड डोनर एंड अदर्स विल बी एक्टिंग एज फ्लोराइड एक्सेप्टर. तो इस टाइप से कंपाउंड फॉर्म होते हैं. द नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ xenon फ्लोरीन कंपाउंड्स. ये स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करके देख सकते हैं. 11th क्लास में VSEPR थ्योरी में आपने ये स्ट्रक्चर सारी स्टडी की हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमें XeF2 की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है तो xenon के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं एंड 2 बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड विद फ्लोरीन. तो 1 इलेक्ट्रॉन हियर, अनदर इलेक्ट्रॉन हियर, 2, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 लोन पेयर रह जाते हैं और 2 बॉन्ड बन जाएंगे. तो इससे XeF2 की शेप क्या हो जाएगी, लीनियर. फिर XeF4 है. XeF4 में 4 फ्लोरीन ने बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में. सो 8 - 4 विल बी 4, तो 2 लोन पेयर रह जाते हैं यहाँ पे. तो 4 अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं तो शेप कौन सी हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर. एंड देन XeF6, आउट ऑफ 8 6 इलेक्ट्रॉन विल बी फॉर्मिंग बॉन्ड विद xenon एंड 2 इलेक्ट्रॉन हैं xenon के 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बन जाएंगे. तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रहेंगे दैट विल बी एक्टिंग एज ए लोन पेयर. तो शेप हो जाएगी डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में सिर्फ 6 बॉन्ड पेयर होते हैं. तो अलोंग विथ 6 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है यहाँ पे. तो शेप विल बी डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल. लाइक दैट शेप विल बी फॉर्म्ड. देन नेक्स्ट इज xenon ऑक्सीजन कंपाउंड. एज आई टोल्ड यू कि xenon के बहुत कम कंपाउंड्स नोन हैं. xenon के फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड्स हैं. तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट xenon फ्लोरीन कंपाउंड्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट xenon ऑक्सीजन कंपाउंड. तो xenon ऑक्सीजन कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4 एंड XeF6. XeF2 का हाइड्रोलिसिस हम पहले देख चुके हैं. नाउ दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4 एंड XeF6. दोनों ही केसेस में क्या होगा, HF विल बी फॉर्म्ड एंड देन XeO3 विल बी फॉर्म्ड. HF will be side product in both cases and XeO3. But with XeF4, xenon and oxygen will also be formed. जैसे हमने XeF2 में देखा था, वहाँ पे xenon, HF, O2 ये 3 कंपाउंड फॉर्म हुए थे. यहाँ पे XeF
XeO3 भी फॉर्म हो रहा है विद XeF4, और जब XeF6 है तो XeO3 फॉर्म हो रहा है। दिस यू हैव टू रिमेंबर कि कैसे इसका हाइड्रोलिसिस होता है। देन दिस इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, कि यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ H2O रिएक्ट कर रहे हैं, तो ऑल 6 फ्लोरीन एटम्स विल बी रिमूव्ड और उसकी जगह पे 3 ऑक्सीजन आ जाएंगे, क्योंकि फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो ओनली 3 ऑक्सीजन विल बी प्रेजेंट। लेकिन अगर इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस हम करते हैं तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, इफ़ 1 H2O विल बी रिएक्टिंग विद XeF6 तो सिर्फ एक ऑक्सीजन ही ऐड होगा उसमें, और एक ऑक्सीजन ऐड होगा तो 2 फ्लोरीन रिमूव हो जाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा, XeOF4 एंड 2 HF विल बी फॉर्म्ड। लेकिन अगर 2 H2O रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है तो 4 फ्लोरीन रिमूव हो जाएंगे यहाँ से, और फॉर्मूला होगा XeO2F2 एंड HF विल बी साइड प्रोडक्ट। बेटा इन हाइड्रोलिसिस को रटना नहीं है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ये ध्यान रखना है कि अगर 3 मोल्स H2O हैं तो 3 ऑक्सीजन आएंगे, 2 मोल्स H2O के साथ है तो 2 ऑक्सीजन एंड रिमेनिंग 2 विल बी फ्लोरीन, क्योंकि 6 वैलेंसी है यहाँ, XeF6 है, और अगर एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन आएगा तो 4 फ्लोरीन विल बी प्रेजेंट। लाइक दैट यू कैन रिमेंबर द हाइड्रोलिसिस ऑफ these compounds. Then structure of xenon oxygen compound, XeO3 पिरामिडल होती है इसकी शेप। Xe के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 4 6, बिकॉज एक ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड बनाता है, तो 2 4 6 एंड 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, शेप विल बी पिरामिडल। देन फॉर XeOF4 फ्लोरीन है वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 विद ऑक्सीजन 6 एंड 2 एज ए लोन पेयर, तो ये शेप क्या हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल। लाइक दैट वी कैन आइडेंटिफाई द शेप्स ऑफ दीज कंपाउंड्स। देन लास्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में वी नो हीलियम ज़्यादा यूज़फुल है, विच इज़ नॉन इनफ्लेमेबल लाइट गैस यूज्ड इन फिलिंग द बैलून्स एंड गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ होती है ये। और एक इसका यूज़ ये भी है कि इट इज़ यूज्ड फॉर ऑक्सीजन इन मॉडर्न डाइविंग एपरेटस में जो मास्क होता है उसमें ऑक्सीजन में हीलियम मिक्स की जाती है बिकॉज ऑफ इट्स लो सोल्युबिलिटी इन द ब्लड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हीलियम है वो डाइविंग एपरेटस में क्यों यूज़ की जाती है, बिकॉज ऑफ इट्स लो सोल्युबिलिटी इन द blood. So like that another gases are also used for different purposes.